Let's continue the topic, that is the solutions. Those are showing the negative deviations. Here are some examples. Those are showing negative deviation from the Rawls law. In my previous video lectures, I gave the explanation what is ideal solution, what are non-ideal solutions, what are the various conditions for a solution to be ideal and conditions where a solution can be non-ideal, and if it is a non-ideal, then when it will show positive deviation, when it will show the negative deviation. Here the examples for the solutions which are showing negative deviation, that is a phenol and aniline, water and nitric acid, chloroform and diethyl ether, and chloroform and acetone. These are the solutions, because in a whole unit of class 12th chemistry solution, we are talking about binary solution. And in that topic, we are specifically saying about liquid solution. Liquid solution, where we saw Henry law in a solution where a solute are gaseous, and if the solute is a solid and non-volatile, then we can see a Rawls law where a solvent is a volatile in nature, and a solution where both solute and a solvent are volatile in nature. Let's see what are negative characteristics of a solution, or a solution said to be a negative. What are the various characteristics when it is a negative? So a solution where the new force of attraction, as we know that कि binary solution है, we are talking about binary solution where we are having a two components. One is solute, which present in a lesser amount, and a solvent which present in a larger amount. When these two are volatile in nature, or one of these are volatile in nature, then a new force of attraction. यहाँ पे जो solute है, let's see, we can mention it as a second component. तो इसके जो constituents हैं, particles हैं, उनके बीच में BB force of attraction है. जो solvent है वो greater extent में है, तो we can say a large amount of its presence, और जो इनके constituent particles हैं उनके बीच में जो force of attraction है, that is a AA. Now when we are making a solution, अब हमने इनको solution बना लिया है, then we will get a new force of attraction between their particles, and that is a AB. If the new force of attraction is greater, or we can say they are having a very strong bonding as compared to AA and BB, then what will happen? अगर ये बहुत ज़्यादा strong है, then we will get a new force of attraction where we means जो solution है, it will not, उसके जो particles हैं, they will not easily move in a gaseous phase. Though it is a volatile in nature, but they are not easily escaping, because the new force of attraction is very strong as compared to AA and a BB. I should write other way around, because AA should be come first. Solution तो वैसा ही रहेगा, हमने थोड़ा सा इसमें बस change करना है, so that I should read AA first. AA and BB. Let's see, say it solvent and solute. Now जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ड्यू टू दैट व्हाट वी विल सी ग्राफिकली, अगर हम इसे देखें, तो क्योंकि दो हमारे कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पे ये वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वेपर और प्रेशर, और यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन. What will happen? टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूशन हमेशा यूनिटी ही होता है. तो दो ही कंपोनेंट है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके सारा वो प्योर स्टेट में है और उसी की मोल फ्रैक्शन है, और दूसरी साइड हम मान लेते हैं कि जो कंपोनेंट सेकेंड है इस तरफ, उसी वो भी अपनी प्योर स्टेट में है.
तो जैसे जैसे अब हम इन दोनों को मिक्स करते जाएंगे, दे विल गेट अ लेस देयर ओन मोल फ्रैक्शन, दूसरा भी आने वाला है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे दैट इज अ P1 नॉट प्योर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, एंड यहाँ पे P02 प्योर प्रेशर ऑफ अ सेकेंड कंपोनेंट। नाउ जैसे जैसे, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेशन फर्स्ट कंपोनेंट की क्या है, जीरो है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन सेकेंड कंपोनेंट की जीरो है। अगर यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट की जीरो है तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वन आ गया। सेम वे यहाँ पे x2 जो वो जीरो है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसका कंसेंट्रेशन भी मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पे उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो वी कैन से कि जो x2 है वो इस तरफ बढ़ रहा है और जो x1 है वो इस तरफ उसकी concentrate mole fraction बढ़ रही है। Now if we join this line linearly then we will get a total pressure, partial pressure of a solution, total pressure मिल गया solution का, that is equal to P1 plus P2। और ये जो हमने शो किया है this is the partial pressure of component 1, ये जो हमने शो किया है this is the partial pressure of component 2। Now a solution which is showing a negative deviation, अब सोल्यूशन कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, क्योंकि जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इफ इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग तो जो हमारा एक्सपेक्टेड है, जो रॉल्स ने, ये रॉल्स लॉ, अभी तक मैंने ये जो ग्राफ बनाया है दिस इज द रॉल्स लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि अब ये सोल्यूशन कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव है तो जो रॉल्स ने यहाँ पे इंडिकेट किया कि ये होना चाहिए, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसका जो अभी पार्शियल प्रेशर आएगा दैट इज अ वेरी लेस और लेस देन दी व्हाट रॉल्ट स्टेटेड। सेम वे we are showing a less partial pressure of component 2 because the new force of attraction is a more, and similarly अगर उन दोनों का कम है तो in total vapor pressure और total pressure of a solution is also less। दिस इज द नेगेटिव डिविएशन जो कि मैंने यहाँ पर भी शो किया है, ये पहले से ही मैंने बना दिया था, तो यहाँ मैंने शो कर दिया कि हाउ वी कैन ग्राफिकली रिप्रेजेंट दिस फॉर द नेगेटिव डिविएशन। नाउ ये नेगेटिव डिविएशन कौन शो करेगा, जिसके लिए यहाँ मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि दीज आर द एग्जांपल दोज आर शोइंग नेगेटिव डिविएशन। व्हाई दे आर शोइंग नेगेटिव डिविएशन? बिकॉज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्गनेस व्हाट विल हैपन, ये जो डेल्टा मिक्स हमारा एंथैल्पी है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, मीन्स लेस देन जीरो, क्योंकि फोर्स इतना बन रहा है, ऑटोमेटिकली न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये डेल्टा मिक्स जो है दैट इज अ नेगेटिव। सेम वे जो नेगेटिव डिविएशन के लिए डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इज ऑल्सो लेस देन जीरो, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये कम हो जाएंगी। और अब जो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 1 का है इट इज ऑल्सो लेस देन व्हाट रॉल्ट स्टेटेड, वो भी उससे भी बहुत कम हो जाएगा। सेम वे हम सेकेंड कंपोनेंट के लिए भी ऐसे लिखेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी लेस। क्लियर? तो ये वो कंडीशंस आ गई हैं, अगर वो लेस है तो टोटल प्रेशर जो है दैट इज ऑल्सो लेस। यहाँ पे हम ये लेस हो गया एंड इट इज नॉट इक्वल टू क्या है, ये जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज नॉट इक्वल टू किसकी है, एंड इट इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। सेम वे ये वो कंडीशंस हैं जब हमारा सोल्यूशन नेगेटिव डिविएशन शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट वो आपस में इतना क्लोजली और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, दे आर नॉट इजीली escaping फ्रॉम द सोल्यूशन। दैट इज वाई वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ जो मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। दीज आर द कंडीशंस फॉर द नेगेटिव डिविएशन। एंड